اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ خالد رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے خیمے کے قریب دو گھوڑے آ کر رکے۔ سوار کود کر اترے۔ بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو رہی ہے۔ یہ مدائن کی فوج کے ساتھ اندر زغر نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے۔ دوسری فوج بہمن جازویہ کی زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گی؟ اشر نے جواب دیا، دونوں فوجیں دلجا میں اکٹھا ہوں گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھیں گی؟ ابن آصف نے کہا، کماندار نے یہی بتایا ہے۔ ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اونٹ سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فلاں سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بہمن جازویہ کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بھیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اندر زغر اور بہمن جازویہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے کے ساتھ دلجا پہنچتی، مگر ہوا یوں کہ اندر زغر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسرا ارد شیر کے قریب تھا، اس لیے ارد شیر اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تھا اور وہ 2 دن کے بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندر زغر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی، صرف ایک واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ ارد شیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اندر زغر کی فوج کا تو شمار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے، ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ثابت ہوئے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا مہ برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھیں، زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی اور دور دور کنارے سے لگی تھی، اور زرتشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ 2-2 4-4 اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندر زغر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے، ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے، ان سے بات کرتے تھے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کے بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے، پیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائیں۔ انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو، ان کے سالار اندر زغر نے حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے مارکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جیسے مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو یا وہ جن بھوت ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسے دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جو ایک اور مارکا لڑا جاتا تو وہ نفسیاتی اثر خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیتا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ پچھلے مارکے کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی
मदाइन से आने वाली फौज में शामिल हो रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें नई सूरत हाल से आगाह किया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें कहा, मेरे अजीज साथियों, हम यहाँ सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर लड़ने के लिए आए हैं। जंगी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो हम फारिस की फौज से टक्कर लेने के काबिल नहीं। अपने वतन से हम बहुत दूर निकल आए हैं, हमें कुमक नहीं मिल सकती, हम वापस भी नहीं जाएंगे। हम फारसियों को और किसरा को नहीं, आग के खुदाओं को शिकस्त देने का अज़्म किए हुए हैं। मैं तुम सबके चेहरों पर थकन के आसार देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखें भी थकी थकी सी हैं और तुम्हारी बातों में भी थकन है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, हमारी रूहें थकी हुई नहीं। हमें अब रूह की ताकत से लड़ना है। एक सालार आसिम बिन अमर ने कहा, ऐसी बातें जबान पर न ला इब्ने वलीद, हमारे चेहरों पर थकन के आसार हैं, मायूसी के नहीं। दूसरे सालार अदी बिन हातिम ने कहा, हमारे इरादों में कोई थकन नहीं इब्ने वलीद, हमने आराम कर लिया है, सिपाह ने भी आराम कर लिया है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं इसीलिए यहाँ खैमजन हो गया था कि अल्लाह के सिपाही आराम कर लें। तुम्हारे इरादे थके हुए नहीं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दूसरी बातें करना चाहता हूँ जो ज्यादा जरूरी हैं। तुमने देखा है कि हमने फारसियों को पहले मार्के में शिकस्त दी तो वो फिर हमारे सामने आ गए। उनके साथ उनके वो सिपाही भी आ गए जो पहले मार्के से भागे थे। अब मुझे फिर इत्तला मिली है कि दूसरे मार्के से भागे हुए सिपाही मदाइन से आने वाली फौज के साथ रास्ते में मिलते आ रहे हैं। अब तुम्हें ये कोशिश करनी है कि अगले मार्के में आतिश परस्तों का कोई सिपाही जिंदा न जा सके। हलाक करो या पकड़ लो। किसरा की फौज का नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। 3-4 आवाजें सुनाई दी, हमारा अल्लाह यूं ही करेगा, सब अल्लाह के इख्तियार में है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम उसी की खुशनुदी के लिए घरों से इतनी दूर आ गए हैं। अब जो सूरत हमारे सामने है उस पर संजीदगी से गौर करो। ये फैसले जज्बात से नहीं किए जा सकते। इस हकीकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फारसियों की जंगी ताकत और तादाद जो अब आ रही है, हम उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं। लेकिन पसपाई को दिल से निकाल दो। ताजा इत्तलात के मुताबिक मदाइन की फौज दजला उबूर कर आई है। आज रात फरात को भी उबूर कर लेगी, फिर वो दुलजा पहुंच जाएगी। उनकी दूसरी फौज भी आ रही है। हमारे जासूस उसका कूच देख रहे हैं और मुझे इत्तला दे रहे हैं। खुदा इज़्ज़ुल जलाल हमारी मदद कर रहा है। ये उसी की जाते बारी का करम है कि फारिस की ये दूसरी फौज जो एक सालार बहमन जाजुया की ज़ेर कमान आ रही है, उसकी रफ्तार तेज नहीं, वो पड़ाव ज्यादा कर रही है। हम अपनी कलील नफरी से दोनों फौजों से टक्कर ले सकते हैं। मेरी अक्ल अगर सही काम कर रही है तो मैं यही एक तरीका समझता हूँ कि मदाइन की फौज जो सालार अंदर जिगर के साथ आ रही है वो दुलजा तक जल्दी पहुँच जाए। पेशतर इसके कि बहमन की फौज भी उससे आ मिले, हम अंदर जिगर पर हमला कर देंगे। क्या मैंने बेहतर सोचा है? सालार आसिम ने कहा, इससे बेहतर और कोई फैसला नहीं हो सकता। मुझे मदाइन की उस फौज में एक कमजोरी नजर आ रही है। उस फौज में ईसाइयों की फौज के कबीलों के लोग भी हैं जो लड़ना तो जानते हैं लेकिन उन्हें जंग और बाकायदा मार्के का तजर्बा नहीं। मैं उन्हें मुसल्ला हुजूम कहूंगा। दुश्मन की दूसरी कमजोरी वो सिपाही हैं जो पिछले मार्के से भागे हुए मदाइन की फौज को रास्ते में मिले थे। मुझे यकीन है कि वो डरे हुए होंगे। उन्होंने अपने हजारों साथियों को तलवारों, तीरों और बर्छियों का शिकार होते देखा है। पसपाई की सूरत में वो सबसे पहले भागेंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुरजोश आवाज में कहा, खुदा की कसम आसिम, तुझ में वो अक्ल है जो हर बात समझ लेती है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन सब पर निगाह दौड़ाई जो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, तुम में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस बात को न समझ सका हो, लेकिन दुश्मन के इस पहलू को न भूलना कि उसके पास साजो सामान और रसद और कुमक की कमी नहीं। सिर्फ अंदर जिगर की फौज हमारी फौज से 6 गुना ज्यादा है। मैंने जो तरीका सोचा है वो मौजू और मौसर जरूर होगा लेकिन आसान नहीं। लड़ना सिपाह ने है। वो समझते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, फिर भी उन्हें अच्छी तरह से समझा दो कि हम वापस जाने के लिए नहीं आए और हम मदाइन में होंगे या खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर पहुंच जाएंगे। 2 मौरखों तबरी और याकूत ने लिखा है कि ये फहम फरासत की जंग थी। अगर तादाद और साजो सामान और दीगर जंगी अहवालों कवायफ को देखा जाता तो आतिश परस्तों और मुसलमानों का कोई मुकाबला ही न था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा उतरा हुआ था। उनकी रातें गहरी सोच में गुजर रही थी। खैमागाह में वो चलते चलते रुक जाते और गहरी सोच में खो जाते हैं। उन्हें जमीन पर बैठकर उंगली से मिट्टी पर लकीरें डालते हुए भी देखा गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि वो आतिश परस्तों से फैसला कुन मार्का लड़े बगैर वापस न आने का अहद कर चुके थे। उन्होंने हस्बे मामूल अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं पहलुओं पर सालार आसिम बिन अमर और सालार अदी बिन हातिम को रखा। अपने साथ उन्होंने सिर्फ 1500 नफरी रखी जिनमें पैदल थे और घुड़सवार भी। इस तकसीम के बाद उन्होंने कूच का हुक्म दिया। ये हुक्म उन्होंने
जासूस की इस इत्तला के मुताबिक दिया कि अंदर ज़िगर की फौज दरियाए फरात उबूर कर रही है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी रफ्तार ऐसी रखी कि आतिश परस्त दुलजा में जूं ही पहुंचे वो उसके सामने हो। ये जंगी फहम फरासत का गैर मामूली मुजाहिरा था और ऐसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। अंदर ज़िगर की फौज दुलजा पहुंची तो उसे खैमे गाड़ने का हुक्म मिला, क्योंकि उसे बहमन की फौज का इंतजार करना था। फौज इतने लंबे अरसे की थकी हुई खैमे गाड़ने लगी और उसके साथ ही शोर बपा हो गया कि बहमन जाजोया की फौज आ रही है। तमाम सिपाह उसके इस्तकबाल में खुशी का शोर गुल मचाने लगी, लेकिन ये शोर अचानक खामोश हो गया। किसी ने बुलंद आवाज से कहा, ये मदीना की फौज है, और उसके साथ ही कई आवाजें सुनाई दी, दुश्मन आ गया, तैयार, होशियार। अंदर ज़िगर घोड़े पर सवार आगे गया और अच्छी तरह देखा। ये खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज थी और जंगी तरतीब में रहकर पड़ाव डाल रही थी। ये फौज खैमे नहीं गाड़ रही थी, जिसका मतलब ये था कि मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार हैं। अंदर ज़िगर को एक सालार ने कहा, सालार आला, हमारी दूसरी फौज नहीं पहुंची। मालूम हुआ है कि वो अभी दूर है, वरना हम उन मुसलमानों को अभी कुचल डालते। ये तैयार हैं और हमारी सिपाह थकी हुई है। क्या तुम नहीं देख रहे कि उनकी तादाद कितनी थोड़ी है? अंदर ज़िगर ने कहा, बमुश्किल 10,000 होंगे। मैं इन्हें चूंटियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इनके घुड़सवार दस्ते कहाँ हैं? उसके सालार ने कहा, कहाँ हो सकते हैं, खुला मैदान है, जो कुछ है साफ नजर आ रहा है। अंदर ज़िगर ने कहा, मालूम होता है हमारे सालारों को और कमांडारों को एक एक के 6-6 नजर आते रहे हैं। शिकस्त खाकर भागने वालों ने मदाइन में बताया था कि मुसलमानों का सालार बड़ा जबरदस्त है और उसके सवार लड़ने के इतने माहिर हैं कि किसी के हाथ नहीं आते। मुझे तो इनका सालार कहीं नजर नहीं आ रहा। सालार ने कहा, हमें झूठी इत्तलाएं दी गई हैं, हम बहमन का इंतजार नहीं करेंगे। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों के घुड़सवार वहाँ नहीं थे, वही थोड़े से सवार थे जो प्यादों के साथ थे। यहाँ खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ कुछ घुड़सवार मुहाफिज थे। आतिश परस्तों के हौसले बढ़ गए। अंदर ज़िगर के लिए ये फतह बड़ी आसान थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इतनी थोड़ी सी नफरी के साथ इतने बड़े लश्कर के सामने आकर गलती की थी। जिस मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं, वो हमवार मैदान था। उसके दाएं और बाएं 2 बुलंद टेकरियां थीं। एक टेकरी आगे जाकर मुड़ गई थी, उसके पीछे एक और टेकरी थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को जंगी तरतीब में कर रखा था। उधर आतिश परस्त भी जंगी तरतीब में हो गए और दोनों फौजों के सालार एक दूसरे का जायजा लेने लगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि आतिश परस्तों के पीछे दरिया था, लेकिन अंदर ज़िगर ने अपनी फौज को दरिया से तकरीबन 1 मील दूर रखा था। आतिश परस्तों के पहले सालारों ने अपना अकब दरिया के बहुत करीब रखा था ताकि अकब महफूज रहे, लेकिन अंदर ज़िगर ने अपने अकब की इतनी एहतियात न की। उसे यकीन था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान उसके अकब में आने की जुर्रत नहीं करेंगे। अंदर ज़िगर ने अपने सिपाह से खिताब किया, ज़रतुश्त के पुजारियों, ये हैं वो मुसलमान जिनसे हमारे साथियों ने शिकस्त खाई है। इन्हें अपनी आंखों से देख लो। क्या इनसे शिकस्त खाकर तुम डूब नहीं मरोगे? क्या तुम इन्हें फौज कहोगे? ये डाकुओं और लुटेरों का गिरोह है, इनमें से कोई एक भी जिंदा न जाए। वो दिन यूं ही गुजर गया। सालार एक दूसरे की फौज को देखते और अपनी अपनी फौज की तरतीब सीधी करते रहे। अगले रोज खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। फारिस की फौज तह दर तह खड़ी थी। मुसलमानों का हमला तेज और शदीद था, लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। दुश्मन ने अपनी अगली सफ को पीछे करके ताजा दम सिपाहियों को आगे कर दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक और हमले के लिए अपने चंद एक दस्तों को आगे भेजा। घमसान का मार्का रहा, लेकिन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। आतिश परस्तों की तादाद भी ज्यादा थी और वो नीम जर्रापोश भी थे। मुसलमानों को यूं महसूस हुआ जैसे वो एक दीवार से टकरा कर वापस आ गए हों। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ देर और हमले जारी रखे, मगर मुजाहिदीन थकन महसूस करने लगे थे। मुताद्दिद मुजाहिदीन जख्मी होकर बेकार हो गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस ख्याल से कि उनकी फौज हौसला न हार बैठे, खुद हमले के लिए सिपाहियों के साथ जाने लगे। इससे मुसलमानों का जज्बा तो कायम रहा, लेकिन उनके जिस्म शल हो गए। आतिश परस्त उन पर कह लगा रहे थे। उस वक्त तक मुसलमानों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ेरे कमान जितनी लड़ाइयां लड़ी थीं, उनमें ये पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों ने अपने सालार के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज दबा दबा सा था, लेकिन फौज में बेइत्मीनानी साफ नजर आने लगी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सालार के खिलाफ सिपाहियों की बेइत्मीनानी अजीब सी बात थी। वो पूछते थे कि अपना सवार दस्ता कहाँ है। वो महसूस कर रहे थे कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने मखसूस अंदाज से नहीं लड़ रहे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु सिपाहियों की तरह हर हमले में आगे जाते थे, फिर भी उनके सिपाहियों को किसी कमी का एहसास हो रहा था। दुश्मन की इतनी ज्यादा नफरी देखकर भी मुसलमानों के हौसले टूटते जा रहे थे। उन्हें शिकस्त नजर आने लगी थी। आतिश परस्तों ने
कभी एक भी हल्ला नहीं बोला था। अंदर जिगर मुसलमानों को थका कर हमला करना चाहता था। मुसलमान थक चुके थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी फौज की ये कैफियत देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने हमले रोक दिए थे। वो सोच रहे थे कि अब क्या चाल चले कि आतिश परस्तों की तरफ से एक देव हैकल आदमी सामने आया और उसने मुसलमानों को ललकार कर कहा कि जिसमें मेरे मुकाबले की हिम्मत है वो आगे आ जाए। ये 1000 मर्द पहलवान और तेखजन था। फारिस में 1000 मर्द का लक़ब उस जंगजू पहलवान को दिया जाता था जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। 1000 मर्द का मतलब था कि ये आदमी 1000 आदमियों के बराबर है। अंदर जिगर उस देव को आगे करके मुसलमानों का तमाशा देखना चाहता था। मुसलमानों में उसके मुकाबले में उतरने वाला कोई न था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े से कूद कर उतरे, तलवार निकाली और 1000 मर्द के सामने जा पहुंचे। कुछ देर दोनों की तलवारें टकराती रहीं और दोनों पैंतरे बदलते रहे। आतिश परस्त पहलवान मस्त भैंसा लगता था। उसमें इतनी ताकत थी कि उसका एक वार इंसान को 2 हिस्सों में काट देता। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये तरीका इख्तियार किया कि वार कम कर दिए और उसे वार करने का मौका देते रहे ताकि वो थक जाए। उस पर उन्होंने ये जाहिर किया जैसे वो खुद थक कर चूर हो गए हों। ईरानी पहलवान खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को कमजोर और थका हुआ आदमी समझकर उनके साथ खेलने लगा। कभी तलवार घुमाकर कभी ऊपर से नीचे को वार करता और कभी वार करता और हाथ रोक लेता। वो तंजिया कलामी भी कर रहा था। वो अपनी ताकत के घमंड में लापरवाह सा हो गया। एक बार उसने तलवार यूं घुमाई जैसे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की गर्दन काट देगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ये वार अपनी तलवार पर रोकने की बजाय तेजी से पीछे हट गए। पहलवान का वार खाली गया तो वो घूम गया। उसका पहलू खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के आगे हो गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इसी के इंतजार में थे। उन्होंने नोक की तरफ से पहलवान के पहलू में तलवार का इस तरह वार किया कि बर्छी की तरह तलवार उसके पहलू में उतार दी। वो गिरने लगा तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके पहलू से तलवार खींचकर ऐसा ही एक और वार किया और तलवार उसके पहलू में दूर अंदर तक ले गए। तबरी और अबू यूसुफ ने लिखा है कि पहलवान गिरा और मर गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उसके सीने पर बैठ गए और हुक्म दिया कि उन्हें खाना दिया जाए। उन्हें खाना दिया गया जो उन्होंने 1000 मर्द की लाश पर बैठकर खाया। इस इनफिरादी मुकाबले ने मुसलमानों के हौसलों में जान डाल दी। आतिश परस्त सालार अंदर जिगर ने भांप लिया था कि मुसलमान थक गए हैं, चुनाचे उसने हमले का हुक्म दे दिया। उसे बजा तौर पर अपनी फतह की पूरी उम्मीद थी। ये आतिश परस्त समंदर की मौजों की तरह आए। मुसलमानों को अब कुछ ले जाना था। उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए बेजिगरी से मुकाबला किया। एक एक मुसलमान का मुकाबला 10-10, 12-12 आतिश परस्तों से था। अब हर मुसलमान जाती जंग लड़ रहा था। उसके बावजूद उन्होंने डिसिप्लिन का दामन न छोड़ा और भगदड़ न मचने दी। उस मौके पर भी सिपाहियों को ख्याल आया कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने पहलुओं को उस तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो उनका मखसूस तरीका था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और उनके कपड़ों पर खून था जो उनके किसी जख्म से निकल रहा था। क्योंकि ईरानियों की नफरी ज्यादा थी इसलिए जानी नुकसान उन्हीं का ज्यादा हो रहा था। अंदर जिगर ने अपने दस्तों को पीछे हटा लिया और ताजा दम दस्तों से दूसरा हमला किया। ये हमला ज्यादा नफरी का था। मुसलमान उनमें नजर ही नहीं आते थे। अंदर जिगर का ये अहद पूरा हो रहा था कि एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने देंगे। अंदर जिगर ने मुसलमानों का काम जल्दी तमाम कर देने के लिए मजीद दस्तों को हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। अब तो मुसलमानों के लिए भाग निकलना भी मुमकिन न रहा। वो अब जख्मी शेरों की तरह लड़ रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उस मार्के से आगे निकल गए थे। उनका अलम बरदार उनके साथ था। उन्होंने अलम अपने हाथ में लेकर ऊपर किया और एक बार दाएं और एक बार बाएं किया, फिर अलम बरदार को दे दिया। ये एक इशारा था। उसके साथ ही मैदान जंग के पहलुओं में जो टेकरियां थीं, उनमें से 2000 घुड़सवार निकले। उनके हाथों में बर्छियां थी जो उन्होंने आगे कर ली। घोड़े सरपट दौड़े आ रहे थे। वो एक तरतीब में होकर आतिश परस्तों के अकब में आ गए। जंग के शोरगुल में आतिश परस्तों को उस वक्त पता चला कि उन पर अकब से हमला हो गया है जब मुसलमानों के घुड़सवार उनके सर पर थे। ये थे मुसलमानों के वो सवार दस्ते जिन्हें अंदर जिगर ढूंढ रहा था। खुद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की सिपाह पूछ रही थी कि अपने सवार दस्ते कहाँ हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की नफरी की इफराद देखकर ये तरीका इख्तियार किया कि रात को तमाम घुड़सवारों को टेकरी के अकब में इस हिदायत के साथ भेज दिया था कि अपनी फौज को भी पता न चल सके। उनके अलम के दाएं बाएं हिलने का इशारा मुकर्रर किया था।
घोड़ों को ऐसी जगह छुपाया गया था जो दुश्मन से 1.5 मील के लगभग दूर थी। वहां से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज दुश्मन तक नहीं पहुंच सकती थी। एक रिवायत ये भी है कि रात को घोड़ों के मुंह बांध दिए गए थे। उन 2000 घुड़सवारों के कमांडर बुसर बिन अबी रहम और सईद बिन मर्रा थे। जब सुबह लड़ाई शुरू हुई थी तो उन दोनों के कमांडरों ने घुड़सवारों को पाबरकाब कर दिया था और खुद एक टेकरी पर खड़े होकर इशारे का इंतजार करते रहे थे। आतिश परस्तों पर अकब से कयामत टूटी तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अगली चाल चली जो पहले से तय की हुई थी। पहलुओं के सालार आसिम बिन अमर और अदी बिन हातिम ने लड़ते हुए भी अपने आप को बचा कर रखा हुआ था। उन्हें मालूम था कि क्या करना है। जब घुड़सवारों ने दुश्मन पर अकब से हल्ला बोला तो पहलुओं के उन दोनों सालारों ने अपने अपने पहलू फैलाकर आतिश परस्तों को घेरे में ले लिया। दुश्मन को धोखा देने के लिए खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना रिजर्व दस्ता भी मार्के में पहले ही झोंक दिया था। इस्लामिक शो स्टेटस को सब्सक्राइब करें।